Hello and welcome to Clarity for UPSC. I am Dr. Shivan. In this video, we are going to look at the complete PYQs of environment from 2013 to 2024. From 2013 to 2024, please treat this like a test. ठीक है, ऐसे रिलैक्स करके आराम से पीछे बैठ के मत देखना. Solve alongside me. तो इस वीडियो को देखने का क्या फॉर्मेट है? You see the question, you pause the video, you solve, and then you see the solution. And end me, I would really recommend that you watch this in one go. एक बारी में देखना पूरी वीडियो, and once you watch it till the end, please comment your score and comment your avoidable mistakes. Now before I start the questions, I think it is important that I address a couple of things. सबसे पहले तो I would just like to thank our brave armed forces. I think we have a problem geographically कि हमारे साइड पे एक ऐसा नेबर है who is very willing to sponsor terrorism and to use terrorism as a weapon of statecraft. Sorry, but it is very appreciable that our armed forces have always backed us and supported us. हम लोग अपने घरों में शांत रह सकते हैं, आराम से बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, just because of their bravery. They are willing to lay down their lives so that we feel safe, and I think no sacrifice is greater. So I feel very thankful to them, and through this video I just want to thank all of our military personnel as well as our government for keeping us safe during these turbulent times. Now I also know कि इस टाइम पे हम जितने भी लोग थे including me, we were a bit distracted, right? मतलब जब ये इतना कुछ डिफ़िकल्ट हमारे नेशन के साथ हो रहा है, तब ऐसा तो नहीं होगा यार कि हम आराम से बैठ के चिल कर रहे हैं, राइट? टाइम डज गेट लॉस्ट. हम देखते हैं न्यूज़ में भी इस बारे में काफ़ी बात होती है. देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन बॉर्डर टाउन्स जहाँ पे ब्लैकआउट्स हुए हैं, राइट? सो इट हैज़ बिन अ डिफिकल्ट टाइम. Thankfully now a ceasefire has been announced. Hopefully Pakistan will stick with it, although even yesterday night there were some news reports that they were not really honoring the ceasefire, but let's see. Hopefully this will end soon. But the idea is that at least now it looks like that the exam, that is the UPSC CSE prelims, will not get postponed. अभी तो ऐसा ही लग रहा है, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट अभी ऐसा ही लग रहा है. Since the ceasefire has been announced today, seems like a relatively peaceful day. Hopefully things will, hostilities will stop and it will become a more and more peaceful environment and the exam will go on as scheduled. अब हुआ क्या है इसमें, that we have all lost time. I have lost time. मैंने भी अपनी जो पढ़ाई मुझे करनी थी, मेरा कल 12 आवर का सेशन है एज यू ऑल नो, उसके लिए पढ़ाई मैं भी नहीं कर पाया. आप लोगों को भी आई एम श्योर काफ़ी टाइम लॉस्ट हुआ होगा. तो माई रिकमेंडेशन इसके देखो यार, जो चीज़ हो गई, आई नो टाइम हैज़ बिन लॉस्ट, बट डोंट वरी अबाउट इट. फोकस ऑन वॉट इज़ लेफ्ट. फोकस ऑन द रिमेनिंग डेज. ठीक है, अभी भी हमारे पास टाइम है. एक आध दिन अगर हमारा गया भी है, if we have, let's say, not been able to study with the maximum efficiency for the past 2-3 days, we can come and recover that, right? अभी भी टाइम है. We as we were following step, we are now doing environment and step. तो ये PYQ की वीडियो आई एम अज्यूमिंग कि आप आज देख लोगे सब, एंड उसके बाद कल हम लाइव सेशन करेंगे. उसमें आई विल वर्क इवन हार्डर टू इंश्योर कि मैं आपको और अच्छे से रिवाइज करा सकूँ. मैं थोड़ा पढ़ाऊँगा भी ज़्यादा ताकि इवन मोर रिविजन कैन बी डन. और कल हम एनवायरनमेंट को ख़त्म करेंगे, फिर हमारा हिस्ट्री का सेशन होगा, और 3 दिन आप एंशिएंट मेडिवल पढ़ोगे, बैकलॉग्स भी अपने कवर कर सकते हो. एंड आई विल बी इंश्योरिंग कि उस टाइम पे आई ऑल्सो डू अ हिस्ट्री एक्टिव रिकॉल सेशन विद यू, राइट? एंड देन देयर विल बी एबल टू इंश्योर दैट एवरीथिंग इज बैक ऑन ट्रैक, राइट? हमें अब बचे हुए 2 वीक्स में हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, एंड वी हैव टू इंश्योर दैट वी पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड. That being said, and again with a huge gratitude and thanks to our armed forces, now I'll start this video. Again format same है, question आएगा screen पे, question देखना, look at the question, try to solve it, then move on to the next one. ठीक है? All right. So let's start with the first question. Which one of the following is the best description of the term ecosystem? ठीक है? All right, let's read the options. A community of organisms interacting with one another. Okay. That part of the earth which is inhabited by living organisms. Okay. A community of organisms together with the environment in which they live, flora and fauna of a geographical area. तो अब अगर आपने पढ़ा, it will be very easy for you to solve that ecosystem is actually a living component है इसमें, and along with the environment and the non-living component, both biotic and abiotic components are counted in ecosystem. तो यहाँ पर आंसर जो है वो बनता है ऑप्शन सी. ठीक है. अब सिंपल डेफिनेशन का क्वेश्चन है नेक्स्ट.
Which one of the following term describe not only the physical space occupied by an organism but also its functional role in the community? क्लास में पढ़ाया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देख लेते हैं. इकोटोन तो तब होता है when two communities interact, two ecosystems के border पे जो region होता है. Niche is the answer here. Habitat is simply the physical space that is occupied, and range is कितनी range में या कितनी area में एक particular organism lives. तो answer here is B, ecological niche. Again something that is directly definition based. अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड यू सी क्वेश्चंस लाइक दिस. इसमें आपको डायटम्स के बारे में पता होना चाहिए. तो ये क्या है, ये करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है फूड चेन की. तो फूड चेन में सबसे पहले सीक्वेंस, नॉर्मली किसी भी फूड चेन में क्या सीक्वेंस होती है कि सबसे पहले प्रोड्यूसर होगा, देन देयर विल बी प्राइमरी कंज्यूमर, देन देयर विल बी सेकेंडरी कंज्यूमर. तो यहाँ पर हमें बताना है बेसिकली कि इन ऑर्गेनिजम्स में से कौन प्रोड्यूसर है, कौन प्राइमरी कंज्यूमर है, कौन सेकेंडरी कंज्यूमर है. तो देखते हैं, डायटम्स, क्रस्टेशियंस और हेरिंग्स में हमें पता होना चाहिए. तो डायटम्स जो होते हैं, दीज आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, दीज आर द वंस दैट आर डूइंग फोटोसिंथेसिस एंड प्रोड्यूसिंग. तो फूड चेन स्टार्ट तो यहीं से ही होगी. देन देयर आर क्रस्टेशियंस एंड हेरिंग्स. हेरिंग्स आर एक्चुअली बिग फिश, राइट, दीज आर बिग फिश एंड दीज आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स. तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन ए. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन एंड यू विल सी दिस क्वेश्चन गेटिंग रिपीटेड. आगे चलते हैं, ये देखो, फूड चेन पे भी क्वेश्चन रिपीट होंगे, डायटम्स पे भी क्वेश्चन रिपीट होंगे. लेट्स सी दिस. ठीक है, मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको ढंग से दिख जाए क्वेश्चंस. या सो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग. 1. अ फूड चेन इलस्ट्रेट्स द ऑर्डर इन विच अ चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन ईच अदर. बिल्कुल सही बात है. फूड चेन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म है, इनको ये खाएंगे, इसको ये खाएगा, यही होता है. फूड चेन्स आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज. ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है. फूड चेन्स आर फाउंड बिटवीन डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज. डिफरेंट स्पीशीज में हमें देखते हैं कि ये एक स्पीशीज है, ये एक सेकंड स्पीशीज है, तो सेकंड स्टेटमेंट लुक्स इनकरेक्ट. फूड चेन इलस्ट्रेट्स द नंबर्स ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म. ऐसा भी नहीं है. फूड चेन जस्ट शोज अस द सीक्वेंस, नॉट द नंबर्स ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म. एंड आंसर हियर देयरफॉर इज ए. ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट. आगे चलते हैं. विद रेफरेंस टू फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम, Which of the following kinds of organisms are known as decomposer organisms? अब देखो, किसी भी फूड चेन में decomposers का क्या काम होता है, जो भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिकम्पोज करने का काम होगा. सो द फूड चेन गेट्स कंप्लीटेड, दे ऐड न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सॉइल. दिस इज द जॉब ऑफ एनी डिकम्पोजर, राइट. तो अब देखते हैं वायरसेस, फंजाई एंड बैक्टीरिया. वायरसेस वैसे भी बॉर्डर लाइन है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, एंड वायरसेस आर पैथोजेंस. वायरसेस आर पैथोजेंस, दे आर नॉट डीकम्पोजर्स, राइट. तो वायरसेस यहाँ पर गलत है, और अगर आप वायरसेस को एलिमिनेट करो तो वैसे ही आपका आंसर आ जाता है बी, विच इज 2 and 3 ओनली. एंड बिल्कुल सही बात है, फंजाई और बैक्टीरिया का काम है डीकम्पोज करना. आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिट्राइटिवोर्स. तो इन द फूड चेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स दैट वी रीड. वन इज डीकम्पोजर्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ फूड चेन्स, एंड वन इज डिट्राइटिवोर्स. यही चीज़ हम देखते हैं. अब यार डिट्राइटिवोर्स और डिकम्पोजर्स में जो डिफरेंस होता है ये आप मुझे बताओगे चैट में. डिट्राइटिवोर्स, यहाँ पे एग्जांपल्स सामने लिखे ही हैं. द डिफरेंस यू विल टेल मी इन द चैट. इनके बीच में एक पर्टिकुलर डिफरेंस है कि किसी चीज़ को डिकम्पोजर और डिट्राइटिवोर कैसे क्लासीफाई करते हैं. डिट्राइटिवोर्स का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दे विल ईट द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, और इनका जो एक्सक्रीटा होता है, दिस एक्सक्रीटा विल ऐड न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सॉइल, राइट. तो अब देख लेते हैं. अर्थवर्म्स लुक्स करेक्ट. जेलीफिश, अब जेलीफिश का ये काम नहीं है. जेलीफिश आर नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स, दे आर कंज्यूमर्स, दे आर नॉट डिट्राइटिवोर्स. मिलीपीड्स, अच्छा आई डोंट नो, हो सकता है मिलीपीड्स हो या ना हो, लेट्स सी. सी हॉर्स, सी हॉर्स इज अगेन अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक कंज्यूमर है, राइट. दे आर इन द सी एंड दे विल बी कंज्यूमिंग थिंग्स. तो सी हॉर्स का भी अनलाइकली लग रहा है. एंड वुड लाइस, अगेन लाइस सीम्स लाइक अ करेक्ट ऑप्शन. लाइस मीन्स जो जुएं हमारे बाल में लग जाते हैं उन्हें भी लाइस कहते हैं. वुड लाइस इज द सेम थिंग, सेम ऑर्गेनिज्म दैट इज फीडिंग ऑन वुड. तो मुझे अब ये क्वेश्चन देख के क्या समझ आता है कि यार जेलीफिश तो नहीं हो सकता, सी हॉर्स भी नहीं हो सकता. अब मैं एलिमिनेशन करके देखूं तो मुझे ऑप्शन 2 अगर मैं हटा दूं और ऑप्शन 4 में हटा दूं तो एक ही आंसर बचता है 1, 3 and 5. एनवायरनमेंट में एलिमिनेशन का काफ़ी रोल है, राइट, बिकॉज जनरली सारी स्पीशीज़ के बारे में जानना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, राइट. सो द आंसर हियर इज सी, 1, 3 and 5 ओनली. आगे देखते हैं. अब देखो डायटम्स में वहाँ पे क्वेश्चन आया था. यू विल सी दैट क्वेश्चन गेटिंग रिपीटेड. consider the following kinds of organisms: copepods, cyanobacteria, diatoms and foraminifera. क्या पूछा है? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स.
प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन से हैं इन सब में? नाउ इफ़ यू लुक एट इट, डायटम्स तो भी ऑलरेडी नो आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, अगर हम PYQs भी करके गए हैं तो भी हमें ये बात पता है। तो जहाँ जहाँ ऑप्शन 3 नहीं है वहाँ तो मुझे एलिमिनेट ही कर लेना चाहिए। अब साइनोबैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे आर वेरी फेमसली primary producers. Cyanobacteria are actually blue green algae. They are also doing producing by photosynthesis. तो आंसर here is B, 2 and 3, and you see this type of questions getting repeated. यही बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं। आगे चलते हैं। अब which one of the following have species that can establish a symbiotic relationship with other organisms? ये पूछ रहा है कि इन ग्रुप्स में कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें अगर एक भी ऐसा स्पीशीज है, even one species is there, right, which can form a symbiotic relationship, तो वो ग्रुप सही है, right? अब देखते हैं फंजाई एंड प्रोटोजोआ, ये तो हैं ही ऐसे। स्निडेरियंस क्या होते हैं? स्निडेरियंस आर द ग्रुप्स इन विच कोरल्स आर देयर, राइट? तो कोरल्स भी हमें पता है कि ये करते हैं, कोरल ब्लीचिंग में यही तो होता है, दैट सिम्बायोटिक एसोसिएशन गेट्स लॉस्ट। सो आंसर हियर इज डी, 1, 2 and 3, एंड लॉजिकली भी हम ये कर सकते हैं कि एक ना एक स्पीशीज तो इस ग्रुप में होगा ही, है ना। चलिए आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सम स्पीशीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बिवोर्स, सम स्पीशीज ऑफ फिश आर हर्बिवोर्स, सम स्पीशीज ऑफ मरीन मैमल्स आर हर्बिवोर्स, सम स्पीशीज ऑफ स्नेक्स आर विविपैरस। विविपैरस और ओविपैरस का मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। हर्बिवोर्स तो क्लियर है, दैट दे आर बेसिकली वेजिटेरियंस, राइट, दे आर ईटिंग प्लांट्स। विविपैरस का क्या मतलब है? दो टर्म्स होती हैं यहाँ पे, विविपैरस एंड ओविपैरस। ओविपैरस होता है those organisms who lay eggs, and viviparous होता है those organisms that give birth to young ones, directly give birth to young ones। जैसे humans की अगर हम बात करें, humans give birth to young ones directly, human का egg नहीं ले होता है, तो humans are viviparous, right? तो ये चीज़ यहाँ पर पूछी गई है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे organisms हैं कि वो viviparous हैं या नहीं है, herbivores हैं या नहीं। अब देखो टर्टल्स में सम स्पीशीज, कोई ना कोई स्पीशीज तो होगी, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू नो अबाउट ऑल। फिश में कुछ स्पीशीज तो होगी। मरीन मैमल्स आर हर्बीवोर्स, ये तो हमने डुगोंग के बारे में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं। डुगोंग इज़ अ हर्बीवोर मरीन मैमल, इसको हम सी काउ भी कहते हैं। अब अगर आपको डुगोंग के बारे में पता है तो इसके साथ कौन सा मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड नेशनल पार्क है, ये आप मुझे चैट में बताओगे। एंड सम स्पीशीज ऑफ स्नेक्स आर विविपैरस, राइट, कोई ना कोई स्पीशीज तो होगी स्नेक्स की ऐसी, राइट। तो लॉजिकली भी हम यहाँ पर डी ऑप्शन टिक करेंगे, एंड आंसर ऑल्सो इज डी, 1, 2, 3 and 4। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चन हमें देखेंगे फ्रॉम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। इन क्वेश्चंस को देखते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। अब बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हमें कौन कौन से पढ़ने होते हैं? हमें नाइट्रोजन साइकिल पढ़ना होता है, सल्फर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, कार्बन, ऑक्सीजन एंड वाटर साइकिल, राइट। और जो हमारी 12th क्लास की NCERT है उसमें काफ़ी डिटेल में भी दिया हुआ है, राइट। तो दिस इज एनीवे समथिंग, बायो की NCERT में लास्ट के 4 चैप्टर्स में डिटेल में दिया होता है, एनीवे समथिंग दैट वी हैव टू रीड। अब क्वेश्चन देखते हैं। इन द केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल्स वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा साइकिल है जिसका जो रेजर्वॉयर है वो मेनली रॉक्स में है। द रेजर्वॉयर इज नॉट इन द एयर, एयर में वो रेजर्वॉयर नहीं है, दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू आस्क। तो इनमें हम देखें तो कार्बन का तो काफ़ी मेजर रेजर्वॉयर है एयर में इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन में भी है, अगर हम देखें नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस। फॉस्फोरस साइकिल इज द राइट आंसर। सल्फर में भी गैस रेजर्वॉयर्स होते हैं लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, H2S एक्सेट्रा। सो आंसर हियर इज सी, फॉस्फोरस साइकिल। चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इस पे आ चुके हैं कई बार क्वेश्चन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्या पूछ रहा है आपसे, और मैं आपको अभी ये याद भी करा देता हूँ कि वाटर अर्थ में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। मेनी टाइम्स क्वेश्चन हैज़ कम फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट दैट हाउ इज वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दी अर्थ। वाटर लेक्स में है, ओशन में, मतलब सॉरी फ्रेश वाटर की बात करें मेनली तो लेक्स में है, ग्लेशियर्स में है, रिवर्स में है। इसकी ग्राउंड वाटर में कितना है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो क्लास में भी मैंने दिखाया था, और इसके लिए मैं आपको पहले एक ये कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ, ये हम याद कर लेते हैं, एंड देन आई विल शो यू द क्वेश्चंस दैट हैव कम फ्रॉम दिस, ठीक है। देखो पहले तो अर्थ में जितना भी वाटर है, टोटल ग्लोबल वाटर की अगर मैं बात करूँ, 96.5% इज इन दी ओशंस एंड 0.9% इज इन अदर सलाइन सोर्सेज। तो पूरे अर्थ में फ्रेश वाटर कितना है, 2.5% फ्रेश वाटर है। अब इस 2.5% को आगे अगर मैं क्लासीफाई करूँ
तो ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स में है 68.7%। सो मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर इज इन ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स। उसके आगे है ग्राउंड वाटर। तो अगर मैं फ्रेश वाटर की बात करूं, मैं यहाँ पे लिखूं तो सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स में है, उसके बाद है ग्राउंड वाटर, उसके बाद है फ्रेश वाटर इन सरफेस सोर्सेस। और इन सरफेस सोर्सेज में भी देखूं तो सरफेस सोर्सेज में भी सबसे ज़्यादा आइस और परमाफ्रॉस्ट में है, आइस एंड परमाफ्रॉस्ट। फिर लेक्स में है, राइट। और फिर कुछ अलग और चीज़ें हैं जैसे कि रिवर्स, एटमॉस्फेयर में थोड़ा बहुत है, सॉइल मॉइस्चर में थोड़ा बहुत है, एक्सेट्रा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मिसलेनियस। अब अगर मुझे ये चीज़ पता है तब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड देर आर वेरियस क्वेश्चंस दैट हैव कम ऑन दिस कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर इन रिवर एंड लेक्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। ये तो बिल्कुल सही नहीं है। हमने देखा कि फ्रेश वाटर जो था वो मैक्सिमम कहाँ पर था, मैक्सिमम वॉज इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, और ग्लेशियर्स के बाद इट वॉज ग्राउंड वाटर। फिर कहीं जाके बाकी चीज़ें आती हैं, पर्माफ्रॉस्ट वगैरह, यही हमने देखा था। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, यही चीज़ पूछी थी। बिल्कुल, ग्लेशियर्स में तो ज़्यादा पानी है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, आंसर इज 2 ओनली। क्वेश्चन पूछा था 2021 में। अब इसीलिए मैं आपको कहता हूँ PYQ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन इन 2013 द सेम कॉन्सेप्ट वॉज आस्क्ड। ऑन द प्लैनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। ठीक है भाई, सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स में है। इसके आगे आउट ऑफ द रिमेनिंग फ्रेश वाटर लार्जेस्ट प्रोपोर्शन इज इन वॉट, हमने क्या देखा, ग्राउंड वाटर में है। तो आंसर इसका सी होना चाहिए, एग्जिस्ट एज ग्राउंड वाटर, और यही आंसर है, राइट। सो अगर हमें ये ग्राफ पता है तो हो सकता है अब इस पर दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर दिया जाए, राइट। अब लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल राइट, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। आई विल जस्ट रिमूव माई सेल्फ सो दैट यू कैन रीड इट। विद रेफरेंस टू an initiative called Economics of Ecosystems and Biodiversity, which of the following statements is or are correct? ठीक है, it is an initiative hosted by UNEP, IMF and World Economic Forum. Okay, global initiative that focuses on drawing attention to economic benefits of biodiversity. Okay, approach that can help decision makers recognize, demonstrate and capture the value of ecosystems and biodiversity. ये जो TEEB है, this was actually thought of by an Indian ecologist, डॉक्टर पवन सुखदेव। तो UNEP, IMF और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहाँ पर गलत है। ऑर्गेनाइजेशंस वैसे भी यू शुड बी वेरी केयरफुल बिफोर टिकिंग दम। अगर बिल्कुल एग्जैक्टली पता है तभी उनको टिक करना चाहिए, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशंस को टिक करना है तो वैसे भी वी शुड बी वेरी केयरफुल, एंड दिस इज एनी वे नॉट राइट। इफ़ यू लुक एट द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, इसकी ये बात करता है ऑफ वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज एंड हाउ इट कैन बी वैल्यूड, बट दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। आगे अगर हम देखें, focusing on drawing attention to economic benefits, this is correct, and decision makers recognize value of ecosystems and biodiversity, this is also correct. तो answer here should be C, 2 and 3. आगे चलते हैं। Which is the process involved in photosynthesis? अब अगर हम photosynthesis की बात देखें, राइट, तो इस पर भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि photosynthesis और respiration में होता क्या है। तो photosynthesis की प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। photosynthesis is that plants are using sunlight to create food. तो कैसे करते हैं प्लांट्स के पास एक chemical है by the name of chlorophyll, and how are they using chlorophyll? They are taking carbon dioxide plus water plus energy in the form of sunlight. Now this is free energy. This is getting converted to C6H12O6, which is glucose plus oxygen, right? तो अब देखो ऑप्शंस क्या हैं। Which of the following is the process involved in photosynthesis? Potential energy is released into free energy. ऐसा तो नहीं हो रहा। फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी एंड देन स्टोर्ड, ये बिल्कुल सही है। क्यों? यहाँ पर सनलाइट की फ्री एनर्जी थी, सनलाइट की फ्री एनर्जी को स्टोर किया एज ग्लूकोज। ग्लूकोज हैज़ पोटेंशियल एनर्जी, इट हैज़ पोटेंशियल टू जनरेट एनर्जी। वाई? क्योंकि अगर मैं ग्लूकोज खाऊंगा तो मेरी बॉडी में एनर्जी जनरेट होगी, राइट। सो दिस इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, इट्स अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अगर मैं इसको यहाँ रेज कर दूँ, ठीक है, अब मैं इस पेंसिल को मैंने यहाँ रेज कर दिया और मैं इसको छोड़ दूँ, it has potential energy here because it has the potential to generate energy. मैं इसको अगर छोड़ दूंगा तो it will fall, right? This is what potential energy is. So यहाँ पर free energy of sunlight is getting converted into potential energy and getting stored. ठीक है, आगे चलते हैं। Now, which one of the following is the correct sequence of ecosystems in the order of decreasing productivity? तो net primary productivity is a concept that we read. इसमें हम क्या देखते हैं कि जो हमारे इकोटोन वाले एरियाज हैं,
जनरली दे हैव मोर प्रोडक्टिविटी। जहाँ पर सनलाइट ज़्यादा जाती है, दोज एरियाज हैव मोर प्रोडक्टिविटी। एंड थर्डली हम यहाँ पर क्या देखते हैं, जनरली जो लैंड बेस्ड सिस्टम्स होते हैं दे हैव मोर प्रोडक्टिविटी, बिकॉज ओशन में क्या प्रॉब्लम आती थी जो हमने क्लास में भी देखा था, दैट इज द फोटिक जोन। जो नॉन फोटिक जोन वाला पार्ट है उस वजह से ओशंस में ओवरऑल प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम रहती थी, राइट। दिस इज व्हाट वी हैव सीन, आई जस्ट राइट दिस प्रॉपर्ली। यही देखा है हमने कि यहाँ पे एक फोटिक जोन की प्रॉब्लम होती है, नॉन फोटिक जोन में प्रोडक्टिविटी उतनी हाई नहीं होती, राइट। तो जो भी वाटर वाले एरियाज हैं वहाँ पर ये ज़्यादा रहती है। अभी ऑप्शन देखते हैं, मैंग्रोव्स में तो सबसे ज़्यादा होगी ही, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। इकोटोन एरिया है, वैसे भी बहुत हाई प्रोडक्टिविटी रहती है, तो मैंग्रोव्स में दो अब ऑप्शन बचे। एक में यहाँ पे सेकंड में ओशंस है, एक में ग्रासलैंड है। ग्रासलैंड लैंड पे है तो ऑब्वियसली लैंड विल हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ हैविंग अ हायर प्रोडक्टिविटी। आंसर हियर इज सी। अब विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स और एड नाइट्रोजन टू द सॉइल, ठीक है। एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया बाय एनिमल्स, दिस इज करेक्ट। डेथ ऑफ वेजिटेशन, बिल्कुल डिट्राइटिवोर्स और डिकम्पोजर्स ऐड करेंगे तो जब प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होगा तो नाइट्रोजन ऐड होगी। बर्निंग ऑफ कोल बाय मैन, दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज इट विल नॉट ऐड नाइट्रोजन टू द सॉइल। कोल में हो सकता है थोड़ा नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हों, बट सॉइल में तो नाइट्रोजन ऐड नहीं हो रही इसकी वजह से। दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग, आंसर हियर इज सी, 1 and 3 ओनली। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग एड्स और एड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल। अब देखो भाई, फोटोसिंथेसिस वाले फैक्टर अगर क्लियर है तो यहाँ पर ये आंसर निकालना आसान है। फोटोसिंथेसिस क्या कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेगा? नहीं, फोटोसिंथेसिस तो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करता है। व्हाट डज इट ऐड? इट एड्स ऑक्सीजन। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट है। थर्ड को अगर हम हटा दें तो दो ऑप्शन बचते हैं, देख लेते हैं। वोल्केनिक एक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, बिल्कुल। रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, बिल्कुल। और ऑर्गेनिक मैटर का डिके होगा, स्पेशली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो आंसर है सी, 1, 2 and 4। आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, एग्रीकल्चरल सॉइल्स रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इनटू द एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही बात है, हमने पढ़े हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। जब हम यहाँ पर ज़्यादा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स डालेंगे तो डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन रिलीज करेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन भी होती है, N2 एक्सेट्रा की। तो दिस इज करेक्ट। कैटल रिलीज अमोनिया इनटू द एनवायरनमेंट। अब ये देखते हैं, क्या कैटल अमोनिया रिलीज करती है एनवायरनमेंट में? थर्ड, पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीजेस रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स। तो कैटल अमोनिया रिलीज करती हैं, इट इज अ वे ऑफ रिलीजिंग नाइट्रोजनस वेस्ट, एंड पोल्ट्री इंडस्ट्री ऑल्सो रिलीजेस रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स। आंसर हियर इज सी, आंसर इज डी, 1, 2 and 3। एंड ये जो लास्ट स्टेटमेंट है इसको चेक करना वर्चुअली इम्पॉसिबल है, तो इसको इनकरेक्ट बोलना ऑलमोस्ट इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि कहीं ना कहीं तो रिलीज हो ही रही होगी ना पोल्ट्री इंडस्ट्री से रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स। सो आंसर हियर इज डी। एंड इन टाइप के क्वेश्चंस में जनरली टेक अ ब्रॉड अप्रोच। अब 19, इन नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन अ सरफेस विदाउट सॉइल। अब ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली प्राइमरी सक्सेशन का क्वेश्चन है। हमने पढ़ा है प्राइमरी और सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो प्राइमरी सक्सेशन का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसको देखते हैं। तो यहाँ पर जनरली प्राइमरी सक्सेशन में कौन कौन से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फाइंड किए जाते हैं। तो हम ये पढ़ते हैं कि लाइकेन एंड मॉसेस आर द वंस दैट आर फाउंड। तो यहाँ पर भी 2 and 3 शुड बी द करेक्ट आंसर, इट इज सी, 2 and 3, लाइकेन एंड मॉस। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। अब अगर हमने ये क्लास में पढ़ा है, हमने देखा है कि राइस जब कल्टिवेट होता है तो हम क्या करते हैं, हम फ्लडिंग कर देते हैं ऑफ द फील्ड। जब हम फ्लडिंग कर देते हैं तो यहाँ पर जो डेड और डिकेइंग मैटर है, जब इसका डिकम्पोजिशन होगा तो इट विल हैपन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या रिलीज होगा? मीथेन रिलीज होगा, राइट। तो आंसर हियर इज राइस। और फर्टिलाइजर्स की वजह से यहाँ पे N2O जैसे कंपाउंड्स भी रिलीज होते हैं, राइट। एंड दिस इज अ क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड बिफोर। अब आपने मुझे चैट में ये बताना है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल साइट और अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल टाइप ऑफ इकोसिस्टम दैट वी प्रिजर्व, जिसकी प्रिजर्वेशन के लिए एक ईरान बेस्ड कन्वेंशन भी है, ईरानियन सिटी पे उसका नाम है। ये भी मीथेन बहुत ज़्यादा रिलीज करते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ ये आपने मुझे चैट में बताना है। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशंस अकर इन डेजर्ट एरियाज टू इनहिबिट वाटर लॉस, ठीक है। अब ये देखते हैं। ऑलराइट, सो इसमें इफ यू लुक एट द मॉडिफिकेशंस, हार्ड एंड वैक्सी लीव्स इज
obviously there because leaves में stomata होते हैं जिसके through transpiration loss होता है which the xerophytes that are present in the deserts try to avoid. Tiny leaves also, this will also lead to that sort of modification and same thorns. तो जहाँ भी लीफ की मॉडिफिकेशन हो रही है वहाँ पर वो पॉसिबल है डेजर्ट में होना बिकॉज इससे वाटर लॉस कम होता है बिकॉज लीव्स हैव स्टोमेटा एंड दे डू लूज वाटर थ्रू इवेपोरेशन एज वेल एज प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. सो आंसर हियर इज डी 1, 2 and 3. अब आगे देखते हैं. अब ये क्वेश्चंस हैं विद रिगार्ड्स टू मैपिंग, राइट. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन द कावेरी बेसिन. अब लेट्स रीड द ऑप्शंस. नगरहोल, पापीकोंडा, सत्यमंगलम एंड वायनाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी. आप देखोगे कि इन्हीं ऑप्शन से भी कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं. पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है? पापीकोंडा नेशनल पार्क जो लोकेटेड है वो लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में एंड इट इज़ एक्चुअली प्रेजेंट इन द गोदावरी बेसिन. तो अगर हम सिर्फ इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर लें, अब यहाँ पे आप ये दिखाएगा आपको आगे क्वेश्चंस के एक तो ऑप्शंस भी कॉमन होते हैं एंड ओनली इफ वी नो द स्टेट, और स्टेट्स हमने बहुत डिटेल में पढ़े हैं अपनी एनवायरनमेंट की क्लास में. तो अगर हमें ये भी पता हो कि स्टेट कौन सा है तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. तो सेकेंड वी जस्ट हैव टू एलिमिनेट, right, and now we come back to either 3 and 4 or 1, 3 and 4. Nagarhole is located in Karnataka and it is part of the Kaveri basin. So answer here is C, 1, 3 and 4. Up. Okay. Which of the following protected areas is well known for conservation of subspecies of Indian swamp deer, यानी कि बारहसिंगा, that thrives well on hard ground and is exclusively graminevorous. ठीक है. अब देखो यहाँ पर again there's nothing that I can teach you here. The answer, I can only tell you the answer. The answer is Kanha National Park, right? And it is it's also a tiger reserve and it's very famous for the revival and conservation of Barasinga, right? ठीक है, आगे चलते हैं. अब है ये क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू डेजर्ट नेशनल पार्क. डेजर्ट नेशनल पार्क ऑब्वियसली इज लोकेटेड इन राजस्थान, राइट. और इसमें कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं ये बतानी है. स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स, ओके. नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क. अब ये बात किसी भी नेशनल पार्क के लिए बोलना बहुत डिफिकल्ट है, स्पेशली बिकॉज देयर शुड बी सम हैबिटेशन इन फॉर्म ऑफ लेट्स से रिसर्चर्स. और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आने के बाद हमने वैसे भी ट्राइबल हैबिटेशन अलाउ करी है इनसाइड नेशनल पार्क्स. तो दिस स्टेटमेंट वी कैन एलिमिनेट एज रॉन्ग. एंड अगर हम सेकंड को एलिमिनेट कर लेते हैं देन वील नो दैट सी इज द राइट आंसर, 1 and 3 ओनली. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Among the following tiger reserves, which one has the largest area under critical tiger habitat? Again, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, nothing that I can teach you, it's fairly factual, but the answer here is Nagarjun Sagar Srisailam. This has the largest area under critical tiger reserve, और ये भी ऐसी चीज़ है जो हमने क्लास में कई बार देखी है. अब which one of the following national parks lies completely in the temperate alpine zone? अब देखो अगर हमें इन नेशनल पार्क्स की लोकेशन पता है, राइट, तो इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम. मानस कहाँ पे लोकेटेड है? आसाम में लोकेटेड है. यहाँ पे मानस रिवर भी जाती है और भूटान के बॉर्डर पे है. वहाँ पे रॉयल मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इंडिया में मानस नेशनल पार्क है. अब देखो ये तो ऑब्वियस ही है कि ये पूरी तरह टेम्परेट अल्पाइन जोन में नहीं है. नामडाफा इज देयर इन अरुणाचल प्रदेश. दिस सीम्स लाइक अ गुड ऑप्शन, बट अगेन नामडाफा इज नॉट लोकेटेड कम्प्लीटली इन टेम्परेट अल्पाइन जोन. यहाँ पर कुछ ट्रॉपिकल कंपोनेंट भी है. तो अगर आप वैसे ऑप्शंस देखो, न्यूरा वैली के बारे में भी सेम बात है. न्यूरा वैली कौन से स्टेट में लोकेटेड है ये आप मुझे चार्ट में बताओगे, राइट. टेल मी इन द चैट, देखते हैं आपको कितना याद है. बट आंसर हियर इज वैली ऑफ फ्लावर्स. वैली ऑफ फ्लावर्स ऑब्वियसली लोकेटेड अलॉन्ग द हिमालयन रेंजेस इन हिमाचल प्रदेश, लोकेटेड इन दैट एरिया. एंड वहाँ पर इट इज़ कम्प्लीटली एट अ वेरी हाई ऑल्टीट्यूड, राइट, 2500 to 3500 मीटर के ऑल्टीट्यूड पे लोकेटेड है. दिस इज द आंसर, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क. अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन अगस्थामलया बायोस्फीयर रिजर्व. अब इस टाइप का जब क्वेश्चन आए और बहुत सारे नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स का नाम है, तो पहले अगस्थामलया की लोकेशन हमें पता होनी चाहिए. अगर ये साउथ इंडिया वाला पार्ट है एंड दिस इज द बाउंड्री लाइन, दिस इज केरला लेट्स से एंड दिस इज तमिलनाडु, तो यहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं इस रीजन में. यहाँ पर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पर अगस्थामलया बायोस्फीयर रिजर्व है ना. अब हम ऑप्शंस देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन अभी के लिए इग्नोर करना. देखो, सत्यमंगलम एंड वायनाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, साइलेंट वैली एंड मुदुमलाई. मुदुमलाई कहाँ लोकेटेड है? मुदुमलाई इज लोकेटेड समवेयर हेयर क्लोज टू नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है. कौंडिन्या, गुंडला, ब्रह्मेश्वरम, पापीकोंडा. पापीकोंडा कहाँ लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में कहीं पे यहाँ पर लोकेटेड है. तो ये भी अगस्थ्यमलया में तो नहीं है, तो ये इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर लेते हैं. कबल, श्री वेंकटेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागार्जुन साइलम
नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये भी हमने देखा कि आंध्र प्रदेश में है और ये भी इस एरिया में तो लोकेटेड नहीं है, राइट। सो आंसर हियर इज ए। एंड इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें हमेशा एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, तभी जब इस टाइप के क्वेश्चंस आए रीड दी ऑप्शंस केयरफुली एंड ऑप्शंस पढ़ने के बाद स्टेट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। अगर आपको स्टेट याद होगा, और कल के लाइव सेशन में मैं आपको याद दोबारा भी करा दूंगा, अगर आपको स्टेट याद होगा इट्स नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली ही स्टेट्स पे पूछ लिया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। पाखुई और पक्के टाइगर रिजर्व, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और टाइगर रिजर्व भी है। दिस इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, नथिंग फॉर अस टू लर्न हियर, बट अगेन अगर आपको स्टेट पता हो इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। अब ये देखो, ये क्वेश्चन एक्चुअली 2016-17 के करंट अफेयर्स से है, बट हमें इस नेशनल पार्क के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए ये आप मुझे बताओगे। Recently there was a proposal to translocate some of the lions from their natural habitat in Gujarat in Gir National Park to which one of the following sites। अब ये वही साइट है जहाँ पर हमने चीतास को भी इंट्रोड्यूस किया है रिसेंटली, विच इज़ कूनो पालपुर नेशनल पार्क। तब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, अब इसको नेशनल पार्क का भी स्टेटस मिल चुका है। अब देखो वही ऑप्शंस रिपीट होते हैं। दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स हैज अ क्लाइमेट दैट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्कटिक। अब यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं नामडाफा का, विच इज़ लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, वो भी बिल्कुल टिप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो जब भी हमें कोई नेशनल पार्क का क्वेश्चन दिखेगा, आगे भी हम ये बात देखेंगे, अगर हमें उसका स्टेट याद है और ज्योग्राफी में हमने क्लाइमेटिक जोन ढंग से पढ़े और रेनफॉल पैटर्न ढंग से पढ़े, इसके साथ एक चीज़ और पूछी जाती है इनमें, रिवर्स। अभी हम आगे देखेंगे, इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे कि रिवर्स कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं। अगर हमें ये सारी चीज़ें साथ में याद है देन इट्स नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम एंड वील नो द आंसर्स मोस्ट ऑफ द टाइम। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज यूनिक इन बीइंग अ स्वैम्प विद फ्लोटिंग वेजिटेशन। अब ये बहुत फेमस चीज़ है कि फ्लोटिंग वेजिटेशन विच इज नोन एज फुमडिस, दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। राइट आंसर इज बी। अब कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पार्क्स एंड रिवर्स पासिंग थ्रू देम। मैंने आपको बोला था रिवर्स पे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, कॉर्बेट एंड गंगा, क्या गंगा जी पास कर रही है कॉर्बेट से? नहीं। विच इज द रिवर दैट इज पासिंग? रामगंगा। काजीरंगा से क्या मानस रिवर पास कर रही है? नहीं। विच इज द रिवर दैट्स एक्चुअली पासिंग? ब्रह्मपुत्र जी इज पासिंग। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क से कौन सी रिवर पास कर रही है? कुंती पूजा। इट्स नॉट कावेरी। तो अगर हमें ये पता होगा तो विल बी एबल टू गेट द आंसर। एंड अगेन नेशनल पार्क में आपको कल भी लाइव सेशन में भी रिवाइज कराऊंगा। नेशनल पार्क में अगेन स्टेट, रिवर और क्लाइमेटिक जोन, इससे ज़्यादा देखो याद भी नहीं हो पाएगा, बट सारे नेशनल पार्क्स के लिए याद कर लेना चाहिए। अगर क्वेश्चन आ गया तो हम विल बी श्योर दैट विल बी एबल टू गेट दिस आंसर राइट। आगे देखते हैं। फ्रॉम एन इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अज्यूम्स इंपॉर्टेंस इन बीइंग अ गुड लिंक बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। अब देखो ईस्टर्न, और ये भी वही देखो, यू विल सी क्वेश्चंस बीइंग रिपीटेड, राइट। शेषाचलाम पे भी पहले क्वेश्चन आ चुका है और सत्यमंगलम पे भी पहले ऑप्शंस में सत्यमंगलम था। ऑप्शन हियर, करेक्ट ऑप्शन हियर है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। अगेन लोकेशन पता होना जरूरी सॉरी, लोकेशन पता होना जरूरी है। अगर लोकेशन पता होगी विल बी एबल टू गेट द राइट आंसर। अब क्वेश्चन 34, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अगेन लोकेशन पे है, डंपा टाइगर रिजर्व, गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सरामती पीक। सरामती इज एक्चुअली द हाईएस्ट पीक ऑफ नागालैंड, तो ये तो बिल्कुल सही है। डंपा टाइगर रिजर्व जो है वो मिजोरम में है, बिल्कुल सही है। गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एक्चुअली लोकेटेड इन त्रिपुरा, नॉट इन सिक्किम, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। आंसर इज 1 and 3, आंसर शुड बी सी। अब देखो फिर से लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंजेस। ओके, बिलीगिरीरंगम हिल्स आर कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज। शेषाचलाम हिल्स, इस पर भी पहले क्वेश्चन आ चुका था, कॉन्स्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? एक एक करके देखते हैं। अमरकंटक हिल्स कहाँ पे हैं? अमरकंटक हिल्स एक्चुअली विंध्या और सतपुरा के कॉन्फ्लुएंस पे हैं, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। जो बिलीगिरीरंगन हिल्स हैं, राइट, ये हैं सदर्न कर्नाटका में एंड दे ऑल्सो एक्चुअली फॉर्म अ लिंक बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। इनके सतपुरा रेंज के आसपास भी नहीं है, ये कर्नाटका में लोकेटेड है। दीज आर ऑल्सो रॉन्ग। एंड शेषाचलाम हिल्स कहाँ पे लोकेटेड है? शेषाचलाम बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, तो होगी भी तो ईस्टर्न घाट्स में होगी, वेस्टर्न घाट्स में तो नहीं हो सकती। तो आंसर हियर इज डी, नन ऑफ द अबव। अब ये क्वेश्चंस वैसे टफ लगते हैं, बट अगर हमें स्टेट्स याद हो तो दिक्कत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज लायन टेल्ड मकैक फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। अब लायन टेल्ड मकैक पे भी पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं, राइट, आगे भी क्वेश्चंस आए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। अब लायन टेल्ड मकैक क्या है? इट इज अ नॉक्टर्नल एनिमल, राइट। ये भी उन्होंने पहले पूछा हुआ है कि क्या लायन टेल्ड मकैक नॉक्टर्नल है या नहीं है। दिस ऑल्सो इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वील जस्ट सी। लायन टेल्ड मकैक एक्चुअली एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है एज फार एज आई रिमेंबर, एंड इट्स देयर इन द वेस्टर्न घाट्स, राइट। ये वेस्टर्न घाट्स में मिलता है। तो अगर स्पीशीज़ को भी अगर हम ऐसे मैप कर लेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम आएगी नहीं, राइट। तो वेस्टर्न घाट्स के हिसाब से इसके लोकेशन होनी चाहिए। तो जो हमारे ऑप्शंस हैं वो हम वेस्टर्न घाट्स के हिसाब से देखेंगे, राइट। तो तमिलनाडु में बिल्कुल मिलना चाहिए, केरला में बिल्कुल मिलना चाहिए, कर्नाटका में बिल्कुल मिलना चाहिए, बट आंध्र प्रदेश में नहीं मिलना चाहिए बिकॉज इट इज़ एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट्स। तो 1, 2 and 3 शुड बी द करेक्ट आंसर हियर। तो स्पीशीज़ के लिए भी जो मैंने आपको मैप बनवाया था जिसमें स्पीशीज़ की लोकेशन और उसकी IUCN स्टेटस, इतना अगर हमें पता रहेगा तो उसके बाद हमें दिक्कत नहीं रहती। आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फॉना विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंडेंजर्ड, ठीक है। अब एंडेंजर्ड वर्ड यहाँ पर इज नॉट एक्चुअली आस्किंग फॉर देयर IUCN स्टेटस। अब यहाँ पे देखा जाए तो घड़ियाल इज एक्चुअली क्रिटिकली एंडेंजर्ड, राइट। बट यहाँ पर UPSC ने जो एंडेंजर्ड क्वेश्चन पूछा, थोड़ा सा नॉट फ्रेम्ड प्रॉपरली, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, इट्स नॉट बीन फ्रेम्ड इन द बेस्ट मैनर। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है घड़ियाल, बट यहाँ पर ये पूछना चाह रहे थे कि कौन ऐसे हैं जो किसी भी तरह से थ्रेटन्ड है, एंड ऑल 3 ऑफ देम आर थ्रेटन्ड, राइट। देखो स्वॉम्प डियर पे भी उसके बाद क्वेश्चन आ गया, लेदर बैक टर्टल पे भी हमने इस बार करंट अफेयर्स में पढ़ा था, घड़ियाल पे भी इसके बाद क्वेश्चन आ चुका है 2013 के बाद। सो आंसर है C 1, 2 and 3। अब देखो विच ऑफ द अबव आर मैमल और मैमल्स। हमने देखा था कि सी हॉर्स पे पहले भी क्वेश्चन आया था, सी हॉर्स पे यहाँ पर भी क्वेश्चन आया है, और यहाँ पर यू कैन टेक द हेल्प ऑफ अंडरस्टैंडिंग द थिंग दैट इज देयर ऑन लैंड। तो सी काउ इज एक्चुअली डुगोंग, और डुगोंग पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। मरीन मैमल्स पे भी क्वेश्चन आया, ये भी हमने देखा था, वेजिटेरियन मरीन मैमल यही है डुगोंग। तो दिस इज करेक्ट। सी हॉर्स इज इनकरेक्ट एंड सी लायन इज ऑल्सो करेक्ट सिंस लायन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेमेलिया। तो आंसर हियर इज 1 and 3। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे, दीज आर एक्चुअली क्वेश्चंस दैट कम ऑन स्पीशीज, आप इनको लैंड से कनेक्ट कर सकते हो, एंड ऑप्शंस रेपिटेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखी जाती है, राइट। अब स्टार टॉर्टोइज, मॉनिटर लिजर्ड, पिग्मी हॉग एंड स्पाइडर मंकी पूछा का गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्चुअली फाउंड इन इंडिया। अब ये जो स्पाइडर मंकी है, ठीक है, स्पाइडर मंकी इज एक्चुअली अ न्यू वर्ल्ड मंकी। न्यू वर्ल्ड का क्या मतलब होता है? इट इज फाउंड इन US, या फिर जो अमेरिकाज हैं, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, उनमें मिलता है हमें स्पाइडर मंकी। तो 4th ऑप्शन इज इनकरेक्ट। बाकी तीनों हम वैसे भी पढ़ते हैं, ऑल 3 आर करेक्ट। सो आंसर हियर इज A 1, 2 and 3 ओनली। अब देखो घड़ियाल पे मैंने आपको बोला था पहले भी क्वेश्चन है, यू विल सी दैट अगेन। अदर देन पोचिंग, व्हाट आर पॉसिबल रीजंस फॉर द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ गैंजेस रिवर डॉल्फिन्स, ठीक है। पहला, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड बैराजेस इन द रिवर्स, ऑफ कोर्स दिस कैन लीड टू अ डिक्लाइन। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल्स, गैंजेस में कौन सा क्रोकोडाइल मिलता है, राइट, ये आपने मुझे बताना है। इट्स एक्चुअली राइट, गैंजेस में क्रोकोडाइल्स वैसे भी अगर बढ़ेंगे तो देयर विल बी अ इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम दैट विल बी एस्टैब्लिश। क्रोकोडाइल्स की वजह से पॉपुलेशन डिक्लाइन वैसे भी अनलाइकली है। ट्रैप्ड इन फिशिंग नेट्स, दिस इज करेक्ट। एंड सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड अदर एग्रीकल्चरल केमिकल्स इन क्रॉप फील्ड, ये भी करेक्ट है। अब ये भी क्वेश्चन इनडायरेक्टली घड़ियाल पे है। अगर आप देखो, आपने क्रोकोडाइल्स इंडिया में पढ़े हैं, तो घड़ियाल इज अ क्रोकोडाइल दैट वी रीड अबाउट। So this statement, second statement is wrong, and 1, 3 and 4 are correct. C. अब देखो डुगोंग which is marine mammal which is herbivorous, कहा था इस पे क्वेश्चन आ चुका है। अब इस पे देखो दोबारा 2015 में भी क्वेश्चन आया। तो दिस इज हाउ क्वेश्चंस गेट रिपीटेड। इट इज अ herbivorous marine animal, बिल्कुल, along the entire coast of India, ये बात तो करेक्ट नहीं है। कहाँ पर फाइंड किया जाता है ये आप मुझे बताओगे। एंड यस, इट इज प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1। जो भी हमारे थोड़े से भी ऐसे स्पीशीज़ हैं जिनमें थोड़ी सी भी पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है, या उनका IUCN स्टेटस थोड़ा सा ख़राब है इन टर्म्स ऑफ दे आर क्लोज टू बीइंग थ्रेटेंड, वी डू पुट देम इन शेड्यूल 1। सो 1 and 3 आर करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। आंसर हियर इज C 1 and 3 ओनली। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन आया था 2015 में, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। बट अगर आप वैसे भी देखो, इवन गैंजेटिक डॉल्फिन वॉज आस्क्ड बिफोर। गैंजेटिक डॉल्फिन पे भी पहले क्वेश्चन आ चुका है, राइट। अब दोबारा यहाँ पर आंसर वही है, गैंजेटिक डॉल्फिन, एंड यू विल सी हाउ क्वेश्चंस विल गेट रिपीटेड।
ये उस साल के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है 2016 का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर यू मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। अब ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल एक्चुअली वेस्टर्न घाट्स का एनिमल है, तो आंसर इज डी। एंड एक इंडिया का कोई स्टेट है वेयर अ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। ये आपने मुझे चैट में बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। अब recently in our country for the first time which of the following states has declared a particular butterfly as a state butterfly। ये actually उस टाइम के current affairs का question है। Answer here is Maharashtra। Now there is in the news this year there is another state which is deciding its state butterfly। ये आपने मुझे बताना है कि ये कौन से स्टेट की बात हो रही है। एक ऐसा पर्टिकुलर और स्टेट भी है which is deciding its state butterfly। किसकी बात हो रही है ये आप मुझे यहाँ पे कॉमेंट्स में बताओगे। The term M stripes sometimes seen in the news is in the context of। अब देखो नाम से भी वैसे स्ट्राइप से आप रिलेट कर सकते हो, बट M stripes is a way of measuring tiger population, राइट। कि टाइगर पॉपुलेशन को मेजर करने का तरीका है। अब जाके टाइगर गिन तो नहीं सकते, तो पहले हम क्या करते थे, पहले हम करते थे कि हम उनकी पग मार्क से या तो मेजर करते थे, या तो पग मार्क से आइडेंटिफिकेशन करते थे, या फिर उनकी जो फीसीज होती थी उनसे आइडेंटिफाई करते थे। देन वी केम अप या तो हम फीसीज से आइडेंटिफाई करते थे या पगमार्क से करते थे। नाउ वी केम अप विद अ डिफरेंट सिस्टम कॉल्ड मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, एंड दिस इज व्हाई इट्स लोकेटेड टू इट्स द आंसर हियर इज ऑप्शन बी, इट्स रिलेटेड टू टाइगर रिजर्व्स। अब recently there was a proposal to translocate some of the lions from their natural habitat to which I think this we have seen before, this is Kuno Palpur। सेम क्वेश्चन है, ये हम देख चुके हैं। आई थिंक द क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड। आगे देखते हैं, स्पीशीज पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। अब देखो महासीर पे भी दोबारा आपको क्वेश्चन दिखेगा। ब्लू फिन महासीर इज इन द कावेरी रिवर, इरावदी डॉल्फिन इन द चंबल रिवर एंड रस्टी स्पॉटेड कैट इन द ईस्टर्न घाट्स। अब देखो ब्लू फिन महासीर कावेरी रिवर, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इरावदी डॉल्फिन अगर नाम है तो इरावदी रिवर में होगा ना, चंबल रिवर में क्यों होगा, तो दिस इज इनकरेक्ट। तो अगर आप सेकंड को एलिमिनेट कर लो तो भी आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 and 3। एंड इससे हमें याद क्या करना है कि रस्टी स्पॉटेड कैट ईस्टर्न घाट्स में होती है। अब हो सकता है इस साल रस्टी स्पॉटेड कैट पे क्वेश्चन आ जाए, है ना, सो वी हैव टू कीप दिस इन माइंड। अब which of the following are the most likely places to find musk deer in its natural habitat? अब लेट्स लुक एट दिस। मस्क डियर एक्चुअली एक स्मॉल कॉम्पैक्ट डियर है और ये मिलता कहाँ है, इट इज फाउंड नियर उत्तराखंड। तो अगेन अगर हमें लोकेशन पता होगी तो हमें दिक्कत नहीं होगी। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है, यूपी में। मानस कहाँ लोकेटेड है, आसाम में। लोकेशन से कनेक्ट करेंगे, एस्कॉट और गंगोत्री दोनों ही उत्तराखंड में लोकेटेड है, राइट। आंसर हियर भी इज ऑल्सो ए 1 and 2। अगेन अगर हमें लोकेशन पता हो एनिमल की तो ये ढूंढना मुश्किल नहीं है। अब विद रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। द लीडर ऑफ द ग्रुप इज अ फीमेल, ओके। द मैक्सिमम gestation पीरियड कैन बी 22 months, ओके। कैन नॉर्मली गो ऑन कार्विंग टिल द एज ऑफ 40 years ओनली, ओके। एंड अमंग द स्टेट्स इन इंडिया हाइएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरला। अब ये स्टेटमेंट गलत है। हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन हमें कहाँ मिलती है, कर्नाटका में, राइट। तो अगर हम एलिमिनेट कर लें ऑप्शन 4 तो हमारे पास दो ऑप्शन बनते हैं, 1 and 2 और 3। आंसर हियर इज 1 and 2, राइट। एंड वैसे भी ओनली से भी आप निकाल सकते हो, बट इवन इफ यू रीड अबाउट एलिफेंट बिहेवियर एंड दिस इज समथिंग वी डू हैव टू रीड अबाउट, हम अफ्रीकन एलिफेंट और एशियन एलिफेंट में कंपैरिजन भी पढ़ते हैं, राइट। सो दिस इज अगेन समथिंग वी हैव टू रीड अबाउट। सो आंसर हियर इज 1 and 2। अब आगे देखते हैं। मैंने आपको कहा था महासीर पे क्वेश्चन आ चुका है, कावेरी में ब्लू फिन महासीर पे क्वेश्चन आया था। अब देखो यहीं पे क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड। तो अगर आपको पता है कि आपको बस इतना पता है कि महासीर एक फिश है तो भी ये आंसर हम निकाल सकते हैं। आंसर इज ए, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिगार्ड्स टू रेड सैंडर्स। स्पीशीज और नेशनल पार्क बहुत बड़ा कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का, तो अगर हमें ये वाला पार्ट हम ढंग से करके चले जाएं तो हमारे काफ़ी आंसर सही हो जाते हैं, राइट। तो रेड सैंडर्स पे एक क्वेश्चन पूछा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ट्री स्पीशीज इन सदर्न इंडिया, येस। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज। रेड सैंडर्स जो है वो रेन शैडो रीजन में मिलता है, राइट। रेन शैडो रीजन बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, दिस इज वेयर इट इज फाउंड। तो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इट्स एक्चुअली अ पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो यही मैं आपको बता रहा था
कि वेजिटेशन, क्लाइमेट, नेशनल पार्क्स एंड रिवर्स, इनसे कंबाइन करके क्वेश्चन पूछने की टेंडेंसी काफ़ी हाई है, राइट. तो दिस सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज राइट. रेड सैंडर्स इज द सेम ट्री दैट वीरप्पन यूज्ड टू स्मगल फ्रॉम इंडिया. अब consider the following animals. To reduce the chances of being captured by predators, which one of the above rolls up to protect its vulnerable parts? ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे, जो hedgehogs होते हैं, hedgehogs are types of animals जिनमें वो छोटी छोटी spikes निकली होती हैं. Pangolin is also known as scaly anteater. तो किसी भी एनिमल में स्केल्स क्यों होंगे? स्केल्स होंगे जब उसे वो कोई प्रोटेक्शन दे रहे होंगे. स्केल से वेट बढ़ता है एनिमल का, तो एक नुकसान हो रहा है एनिमल को स्केल्स रखने से. वाई वुड एन एनिमल हैव स्केल्स? बिकॉज इट वुड गिव इट प्रोटेक्शन. तो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ करेक्ट है, हेजहॉग और पैंगोलिन. बोथ ऑफ देम रोल अप टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. आंसर हियर इज डी, 1 and 3. अब चलो, अब ये 2023 का क्वेश्चन देखते हैं. मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, कैन थ्राइव ओनली इन मॉन्टेन ग्रासलैंड्स विद नो प्रेडेटर्स. ठीक है, मार्सुपियल्स क्या होते हैं? Marsupials are those animals that actually have a pouch, जिसमें यंग वन थोड़ा टाइम डेवलप करता है, फिर वो यंग वन वाइल्ड में आता है. जैसे आपने कैंगरूज का देखा होगा, that kangaroos stay in the pouch of the mother for some time and then they come out. Those are known as marsupials and these animals are mostly found in Australia. Right? तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है. अब देखो, thrive only in montane grasslands with no predators. ऐसा कौन सा एनिमल है जो प्रेडेटर्स के बिना ही सर्वाइव कर सकता है, जिसका कोई प्रेडेटर ही नहीं होगा, राइट. तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली, इवन इकोलॉजिकली इट्स इनकरेक्ट. प्रेडेटर्स आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट इकोलॉजिकल बैलेंस इज मेंटेन्ड. तो सेकंड स्टेटमेंट को इनकरेक्ट करते ही, इफ यू जस्ट सी स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, योर आंसर विल बी सी. अब क्वेश्चन 54, कंसिडर द फॉलोइंग फॉना. लायन टेल्ड मैकैक, मालाबार सिवेट. देखो, सांबर डियर पे पहले भी क्वेश्चन था, यहाँ पर भी आया, और लायन टेल्ड मैकैक पे भी पहले क्वेश्चन आ चुका है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर जनरली नॉक्टर्नल. अब इस क्वेश्चन में एक्चुअली यूपीएससी का जो आंसर है और जो आंसर मुझे लगता है सही है, उसमें थोड़ा डिफरेंस है. यू कैन रिसर्च दिस ऑन योर ओन. लायन टेल्ड मैकैक तो नॉक्टर्नल नहीं है, राइट. जो मैंने रिसर्च करी उसमें आपको ये मिलेगा कि ये दोनों ही नॉक्टर्नल है, राइट. बट यूपीएससी ने क्या दिया, देखो, अगर आप सर्च भी करोगे तो मालाबार सिवेट तो नॉक्टर्नल है. सांबर डियर को कहते हैं इट इज मोस्टली नॉक्टर्नल, राइट. और लेकिन ये भी कहते हैं कि इट इज मोस्टली एक्टिव इन डॉन. तो ये चीज़ देखते हुए शायद उन्होंने ओनली 1 आंसर दिया. मेरे हिसाब से यहाँ पे आंसर ओनली 2 होना चाहिए. आई थिंक यूपीएससी हैज़ गिवन अ स्लाइटली रॉन्ग आंसर हियर. बट अब अगर यूपीएससी का जो आंसर है वो ओनली 1 है. मैं अगर इस पेपर में जाता, मैंने ये स्पीशीज खुद पढ़ाए हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, अगर आपको आंसर ना पता हो और आंसर बिना सर्च करे अगर आप पता करें अगर आप सर्च करोगे, तो आप भी इन दोनों को ही टिक करोगे. आंसर हेयर शुड बी ओनली 2, बट उन्होंने ओनली 1 आंसर दिया है. एंड समटाइम्स यू नो दीज कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस कम. दिस आई कैन से फॉर श्योर कि कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन से हमारा कट ऑफ डिसाइड नहीं होता, राइट. सो डोंट नीड टू वरी. क्वेश्चन 55, consider the following statements. Some microorganisms can grow in environments with temperature above the boiling point of water. Some microorganisms can grow in environments with temperature below the freezing point of water. Some microorganisms can grow in highly acidic environment below a pH of 3. अब देखो, इन स्टेटमेंट्स को इनकरेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको इसके लिए अगर आपको ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट बोलनी है तो आपको सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना पड़ेगा. एंड इवन इफ वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज सर्वाइविंग इन अ टेम्परेचर अबव बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं हो सकती. सो जस्ट थ्रू लॉजिक यू कैन टेक all 3 here because some or the other microorganisms will always be there. जब भी यहाँ पर ये some type का ऑप्शन हो, right, generally that statement is correct and ऐसे questions आते हैं. So you will see another question like this that also came in 2023. Some mushrooms have medicinal properties, some mushrooms have psychoactive properties, some mushrooms have insecticidal properties, some mushrooms have bioluminescent properties, right. अब देखो, सम को अगर हमें इनकरेक्ट करना है तो हमें सारी चीज़ों को सर्च करना पड़ेगा. अगर एक भी मशरूम में बायोलुमिनेसेंट प्रॉपर्टी हुई तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, राइट. तो इसको हम इनकरेक्ट नहीं कर पाएंगे. तो इफ़ यू हैव टू से दैट एनी ऑफ दी स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, अगर आपको एक स्टेटमेंट को भी इनकरेक्ट डालना है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू से दैट, बिकॉज
हर स्टेटमेंट में आपको चेक करना पड़ेगा विद एवरी पर्टिकुलर स्पीशीज. तो जनरली दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड आंसर हियर इज ऑल्सो डी, ऑल 4. अब देखो, दिस इज हाउ क्वेश्चंस गेट रिपीटेड. राइट, हमें पता है रेड सैंडर्स इंडिया में मिलता है. राइट, विच आर द फॉलोइंग ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया. राइट, तो अगर ये एक्चुअली मॉडर्न हिस्ट्री से देखें तो हमें ये बात पता चलेगी कैश्यू जो है वो ब्राज़ील में एक्चुअली नेटिव है और पोर्चुगीज़ लोग इंडिया में कैश्यू लेके आए थे. इट वॉज एक्चुअली द पोर्चुगीज हु गॉट कैश्यू टू इंडिया. एंड पपाया जो है वो मेक्सिको और कोस्टा रिका में है. Right, so both of these are incorrect, but red sanders again you see is a repeated option and red sanders is correct. Answer here is A, only 1. अब देखो, how many of the above have poisonous species among them. एक भी poisonous species हुआ तो statement correct हो जाएगी. एक भी poisonous butterfly हुई, एक भी poisonous fish है क्या, एक भी poisonous frog है क्या. अगर इस क्वेश्चन को मैं आपसे ऐसे पूछूं कि क्या एक भी पॉइजनस बटरफ्लाई होती होगी तो आप हमेशा हाँ ही बोलोगे. क्या एक भी पॉइजनस फिश होती होगी, आप हमेशा हाँ ही बोलोगे. क्या एक भी पॉइजनस फ्रॉग होता होगा, आप हमेशा हाँ ही बोलोगे. एंड देयरफॉर द आंसर हियर इज सी, ऑल 3. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में इवन दी एप्टीट्यूड दैट वी यूज हियर इज इंपॉर्टेंट. अब सिकाडा, फ्रॉग हॉपर और पॉन्ड स्केटर, वैसे तो ये इनमें से एक न्यूज़ में भी था लास्ट ईयर, बट अगेन डायरेक्टली क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड. ऑल 3 ऑफ दीज आर इंसेक्ट्स एंड जनरली जब वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं तो आंसर इंसेक्ट ही होता है. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं पता है, कुछ भी आइडिया नहीं है तो सीधा आप नाम से ही इसको इंसेक्ट मार्क कर दो. बट देखो यहाँ पे फ्रॉग हॉपर लिखा है एंड यू मस्ट हैव रेड अबाउट अनदर इंसेक्ट कॉल्ड ग्रास हॉपर. राइट, तो अगर ऐसा रिलेशन आप बना सकते हो एग्जाम में तो बना लेना. बट अगेन दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू थिंक एट द टाइम ऑफ एग्जाम. अगर आपको नहीं आता इट्स बेटर टू लीव इट. बट दिस क्वेश्चन इन माई ओपिनियन वॉज स्लाइटली डूएबल बिकॉज इंसेक्ट्स पे पहले भी क्वेश्चन आया है. अब जैसे ये क्वेश्चन भी इंसेक्ट पे आया है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म वैगल डांस फॉर अदर्स इन देयर किन टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस ऑफ अ सोर्स टू अ सोर्स ऑफ देयर फूड. अब इसका आंसर एक्चुअली हनी बीज है. अगेन अ क्वेश्चन दैट वॉज आस्क्ड ऑन इंसेक्ट्स. हनी बीज परफॉर्म द वैगल डांस एंड दे वैगल देयर टेल. उनकी जो छोटी सी टेल होती है उसको वैगल करके वो दिखाते हैं कि फूड किधर है. वेरी डिफिकल्ट कि किसी को ये बात पहले से पता हो अनलेस दे हैव अ डायरेक्ट इंटरेस्ट इन इकोलॉजी. तो अगर आपको ये नहीं पता है इट्स बेटर टू लीव दिस क्वेश्चन. अब which one of the following makes a tool with a stick to scrap insects from a hole in a tree or log of wood. Again very difficult to answer. Answer here is orangutan. अगर कोई लॉजिक आपने सुनना है या तो आपको डायरेक्टली ओरंगुटान्स के बारे में पता हो, एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट्स शायद ये क्वेश्चन ईजिली कर लेंगे. The logic here is very simple that if you look at any animal who is using tools, tool usage is a human thing. तो कोई animal अगर tools use कर रहा है, it's going to be those animals that are closest to humans. And out of these, the closest to humans is orangutan. But again, very difficult to answer in the paper. नहीं भी कर पा रहे तो आपकी गलती इसमें कोई नहीं है. Consider the following statements regarding Indian squirrels. Again, very difficult question to answer. They build nests by making burrows in the ground. They store their food material like nuts and seeds in the ground. They are omnivorous. और इसमें ये भी पूछा हुआ है कि how many statements are correct. तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो इसका क्या करना है? सिंपल सा आंसर है, छोड़ना है. ठीक है. अब अगर आप वैसे देखो तो दिस इज एक्चुअली एन आर्बीवोरस स्क्विरल. आर्बीवोरस मीन्स इट लिव्स इन ट्रीज. तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. राइट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. बट ऐसा क्वेश्चन अगर आपको इस बार भी दिख गया राइट तो भी इस क्वेश्चन को छोड़ देना. ठीक है. अब now let's come to this question. I think we finally finished the questions with regards to species. Now we'll have questions on climate change, conservation, as well as you will see questions most likely with regards to Indian laws and pollution of course. अब इन topics पे questions हमें देखेंगे. Species और national parks के हमने सारे questions कर लिए हैं. तो आगे देखते हैं. Alright, so let's continue. अब ये जो question है, I had explained this in detail in the economics video. वैसे तो ये एक्चुअली माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है. तो लेट्स रीड द ऑप्शंस. कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइडस्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज. दिस इज करेक्ट. ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट. अब देखो, कोई भी अगर रेगुलेशन लगेगी या टैक्सेशन होगी एंड इफ वी सी द डिमांड सप्लाई ग्राफ राइट, इट विल लीड टू ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज टू द स्टेट. इफ दिस इज द डिमांड कर्व एंड दिस इज द सप्लाई कर्व, अगर हम नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ते हैं
आई कॉन्ट एक्सप्लेन द होल कॉन्सेप्ट हियर, इट विल टेक मी 20-25 मिनट्स टू एक्सप्लेन. बट अगर हम नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं, सो द सप्लाई कर्व मूव्स इनवर्ड. एंड अगर हम रिसोर्स यहाँ पर देखेंगे, रिसोर्सेज को क्या होता है, तो इन द फर्स्ट केस इफ दिस वाज व्हाट वाज हैपनिंग, राइट, अगर हम टैक्स भी लगाते हैं, इफ दिस वाज द फर्स्ट केस एंड दिस इज द सेकंड केस, आई विल ड्रॉ द सेकंड वन विद अ डिफरेंट कलर. अगर हम पर्पल वाला केस यहाँ पर देखते हैं, if this upward movement here is tax, this upward movement is also seen with tax, and यहाँ पर जो orange स्क्वायर का एरिया बनेगा, दिस इज द रिसोर्स जनरेटेड विदाउट पुटिंग एनी टैक्स और विदाउट पुटिंग एनी रेगुलेशंस. और जो पर्पल एरिया बनेगा, दिस इज द रेवेन्यू दैट्स जनरेटेड वंस अ टैक्स इज पुट और एनी रेगुलेशन इज पुट. एनी टैक्स और रेगुलेशन डज लीड टू ट्रांसफर टू द स्टेट. एंड अगर हमें वैसे लॉजिकली भी पढ़ना है, तो यू विल नो दैट अगर कार्बन मार्केट्स लगाई जाएँ, right, if you put a carbon market regulation, you will basically have a cap and trade system. तो अगर आप cap and trade को मीट नहीं करते हो, you will have to pay something or the other to the state. आपको कोई पेनल्टी देनी पड़ेगी. बट ये सेम चीज़ टैक्स में भी होती है. इवन इन टैक्स यू आर पेइंग अ पेनल्टी टू द स्टेट इफेक्टिवली. दिस इज नॉट द रीजन वाई कार्बन मार्केट्स आर likely to be one of the most widespread tools for fight against climate change. The reason why carbon markets are likely to be one of the most widespread tools against climate change is because it allows for tradable emission permits. And it allows for trade, right? This is the reason. So both these statements are correct, but the second one is not an explanation. I know I can't explain this in detail because it's actually microeconomics का question है, but if you read economics from me, I'm sure this option is evident to you. अब bio-rock technology, direct question है ये. This is not something which again we have to read about a lot. Bio-rock technology is directly connected to coral reefs, right? Answer is A. 2022 में पूछा था, 2015-16 की टेक्नोलॉजी है, right? अब अगेन अ क्वेश्चन ऑन क्लाइमेट चेंज, हाई क्लाउड एंड लो क्लाउड. जो हाई क्लाउड होते हैं, एच से याद कर सकते हो, दे आर नेट हीटर्स एंड लो क्लाउड्स आर नेट कूलर्स ऑफ द अर्थ. तो अब देखते हैं, हाई क्लाउड्स प्राइमरीली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सर्फेस ऑफ द अर्थ. दिस इज रॉन्ग. लो क्लाउड्स हैव अ हाई अब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन एंड दस हैव अ वार्मिंग इफेक्ट. एक्चुअली इन्होंने ये उल्टा कर दिया है स्टेटमेंट. तो आंसर हियर इज डी, नीदर वन नॉर टू. अब in the context of mitigating the impending global warming due to anthropogenic emissions of carbon dioxide, which one of the following can be the potential sites for carbon sequestration? ये बेसिकली एक क्वेश्चन है फ्रॉम कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, कि वो कौन सी साइट्स हैं जहाँ पर हम कार्बन को स्टोर कर सकते हैं, राइट? तो CCUS जो टेक्नोलॉजी है वो भी ऑल्सो रीड इन टर्म्स ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, वाइट हाइड्रोजन एक्सेट्रा. और इस पर एक मेरी यूट्यूब वीडियो भी है, इफ़ यू सर्च ऑन माई चैनल, ग्रीन हाइड्रोजन एंड CCUS, मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ है. All three of these options are actually correct, and the answer is D, 1, 2, and 3. The scientific view is that the increase in global temperature should not exceed 2 degrees centigrade above pre-industrial level. If it increases beyond 3 degrees centigrade, what can be its possible impacts? ये देखते हैं. Terrestrial biosphere tends towards a net carbon source. Okay, हो सकता है. Widespread coral mortality will occur. Yes. All the global wetlands will permanently disappear. अब ये काफ़ी हाइपरबोले और एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं. कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स विल नॉट बी पॉसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड. अगेन वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट दैट कैन बी एलिमिनेटेड. तो 3 और 4 को हम एलिमिनेट कर लें अगर, तो आंसर हियर इज बी, 1 and 2. अब व्हाट इज ब्लू कार्बन? नाम से क्लियर है वैसे तो. इट इज़ द कार्बन दैट इज सिक्वेस्टर्ड बाय ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम्स. अगेन समथिंग दैट यू शुड ईजिली बी एबल टू सॉल्व. आंसर इज ए. नेट मीटरिंग. नेट मीटरिंग क्या होता है कि कोई भी हाउस होल्ड है, उनके ऊपर आप रूफ टॉप पे सोलर प्लांट लगा दो, यू गिव देम अ रूफ टॉप सोलर, एंड ये यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे. some electricity that they will produce, they will also give back to the grid, and they are able to sell to power distribution companies. They will also be receiving some form of power. कुछ electricity वो receive भी कर रहे होंगे. तो इनके मीटर में जो भी हम इनका फाइनल काउंट लेंगे of the units that they have consumed, we will also take out the solar energy that they have produced. तो एक household है, let's say it consumes 10 units of electricity and it produces 2 units of solar electricity, तो हम इन्हें 8 units के लिए ही चार्ज करेंगे. This is what net metering is. So answer here is A, production and use of solar energy by households and consumers. Up. International Solar Alliance was launched at United Nations Climate Change Conference in 2015. Alliance includes all the members of countries of United Nations. First statement is correct.
जो यूएन की कंट्रीज़ हैं सारी उसके मेंबर्स नहीं हैं। पहले सिर्फ ट्रॉपिकल कंट्रीज इसकी मेंबर हो सकती थी जो बिटवीन द ट्रॉपिक्स थी, अब एक्सपैंड करके ऑल हैव बीन अलाउड, बट अभी भी 122 कंट्रीज ही इसकी मेंबर्स हैं, नॉट ऑल ऑफ देम, सो सेकंड इज रॉन्ग, आंसर इज ए। अब बीईई स्टार लेबल, राइट, बीईई स्टार लेबल आपने भी देखा होगा, दिस इज देयर फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, राइट, और हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपको बीईई स्टार लेबल मिलता है, तो आंसर हियर इज डी 1, 2 एंड 3। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू टेक्नोलॉजीज फॉर सोलर पावर प्रोडक्शन कंसिडर द फॉलोइंग। Photovoltaics is a technology that generates electricity by direct conversion of light into electricity, while solar thermal is a technology that utilizes sun rays to generate heat, which is further used in electricity generation process. Okay, photovoltaics generate AC, while solar thermal generates DC. India has manufacturing base for solar thermal, but not for photovoltaics. देखो नाम से ही क्लियर है, फोटोवोल्टेक्स, वर्ड ब्रेकडाउन भी अगर हम करें, फोटोवोल्टेक इज टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ लाइट यानी कि सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, एंड सोलर थर्मल दिस इज फॉर कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू हीट. So both these statements are correct. So first statement of course is correct. Both the things written in the first statement are correct. Photovoltaics are actually used for generating direct current, right? Not for alternating current. Alternating current तब generate होता है जब हम किसी magnet को rotate करा के current generate कराते हैं, right? तो second statement is incorrect, right? अब third, India has manufacturing base for solar but not for this. This is wrong. India has manufacturing base for both. So answer here is A, one only. अब कार्बन फर्टिलाइजेशन, सीधा वर्ड ब्रेकडाउन का क्वेश्चन है. अगर हम वर्ड फर्टिलाइजेशन देखें, फर्टिलाइजेशन इज जनरली यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, यू नो, इफ वी यूज फर्टिलाइजर प्लांट ग्रोथ इंक्रीजेस. तो कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या बताता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो टेम्परेरीली प्लांट ग्रोथ बढ़ेगी, बिकॉज दे विल यूज दिस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर परफॉर्मिंग photosynthesis. So answer here is A, increased plant growth due to increased carbon dioxide in the atmosphere. Next question is with regards to SDGs. SDGs were first proposed in 1972 by global think tank called Club of Rome. This is wrong. SDGs were actually finalized by UNGA and in the Rio Plus 20 summit in 2012 when the Millennium Development Goals were ending. And SDGs are for a period of 2015 to 2030. Second statement is correct. Answer is B, 2 only. Up. Sorry. Yeah. Which of the following best describes the aim of Green India mission by Government of India? ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं. Incorporating environmental benefits and costs in union and state budgets, thereby implementing green accounting. Okay. Second green revolution to enhance agricultural output. Okay. Enhancing forest cover. This is the actual reason why Green India mission was launched. तो आंसर here is 3 only, right? And सिर्फ नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, मिशंस हमने देखे हैं. आई हैव अपलोडेड द नोट्स ऑफ ऑल ऑफ दीज मिशंस फॉर यू ऑल्सो. तो अगर आप इनको एक बार बेसिक इनके आउटकम्स भी पढ़ लोगे, इवन देन यू विल नो द आंसर. आंसर इज 3. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज encouraging cultivation of sea buckthorn. What is the importance of this plant? अब it helps in controlling soil erosion and desertification, rich source for biodiesel, nutritional value and well adapted to live in cold areas of high altitudes, and nutritional value, its timber is of great commercial value. Actually sea buckthorn जो होता है ये एक medicinal और nutritional plant है. It can also fix atmospheric nitrogen. First statement is correct and third is correct. Biodiesel का source नहीं है और टिम्बर की कमर्शियल वैल्यू भी इसकी कोई खास नहीं है. एक्चुअली डज नॉट इवन हैव टिम्बर. सो आंसर हियर इज सी, 1 and 3 ओनली. अब ये थोड़े डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं विच जनरली यू नो इवन इफ यू डोंट नो यू शुड स्किप दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. लेट्स कम टू क्वेश्चन 77. सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सरफेस पंप्स एंड नॉट फॉर सबमर्सिबल पंप्स. सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स बट नॉट द वंस विद पिस्टन. कहीं से भी अगर पावर जनरेट हो रही है, यू कैन नॉट से कि किस टाइप के पंप के लिए यूज़ नहीं की जा सकती. अगर मैंने सोलर पावर को एक बार स्टोर कर लिया तो मैं उसको किसी भी पंप के लिए यूज़ करूँ, चाहे सेंट्रीफ्यूगल पंप हो, चाहे पिस्टन वाला पंप हो, चाहे सबमर्सिबल हो, चाहे सरफेस हो. आई कैन यूज इट फॉर एनी टाइप ऑफ पंप. सो आंसर हियर इज डी, नीदर 1 nor 2. बोथ दी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. अब
अब ये जो क्वेश्चन है ये हम तभी कर सकते हैं अगर हमें एक डायरेक्टली इसका आंसर पता हो, राइट। गुजरात हैज़ लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया, एक्चुअली ये द स्टेट दैट हैज़ इट इज़ राजस्थान, राइट। केरला हैज़ अ फुली powered solar international airport, this statement is correct. Goa has the largest floating solar photovoltaic project in India, this is actually in Andhra Pradesh, but again very difficult question to know and generally this question should be skipped. In India, why are some nuclear reactors kept under IAEA safeguards while others are not? ठीक है, ओके देखो IAEA safeguard पे अगर हम कोई भी रिएक्टर रखेंगे, IAEA is the global nuclear watchdog, इट इज़ द ग्लोबल न्यूक्लियर वॉचडॉग। और इसका काम क्या है? इसका काम है कि कोई भी अगर इम्पोर्टेड यूरेनियम हम यूज़ करेंगे, इफ़ वी यूज़ इम्पोर्टेड यूरेनियम, तो उस इम्पोर्टेड यूरेनियम को हम एनरिच करके उसका वेपन ना बना लें, ये IAEA का काम है, राइट। तो वेर एवर वी यूज़ इम्पोर्टेड यूरेनियम दैट विल बी अंडर IAEA सेफगार्ड्स, अदर्स विल यूज़ डोमेस्टिक सप्लाईज, तो वो नहीं होगा। अब among the following which one is the least water efficient crop? Answer here is sugarcane. डायरेक्टली हमें पता होना चाहिए, रालेगांव सिद्धि के बारे में भी मैंने आपको क्लास में पढ़ा है, एंड इवन द केस ऑफ महाराष्ट्र इज समथिंग वी नो अबाउट, और यहीं से हम पढ़ते हैं अबाउट, फ्रॉम हेयर ओनली वी रीड अबाउट द आइडिया ऑफ बायोफ्यूल्स, है ना। अब according to the national policy of biofuels, which one of the following can be used as raw materials for the production of biofuels? अब जब ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस आते हैं, द आइडिया इज टू एलिमिनेट, राइट। ठीक है, देखते हैं, कैसवा, डैमेज व्हीट ग्रेन्स, ग्राउंडनट सीड्स, हॉर्स ग्राम्स, रॉटन पटेटोज एंड शुगर बीट। देखो अब अगर हमें ये क्वेश्चन करना है तो आप ये चीज़ समझो कि जहाँ पर भी फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट होगी वहाँ पर हम बायोफ्यूल्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे। एट वेर एवर देर इज़ अ फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट विल नॉट बी एबल टू यूज़ बायोफ्यूल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखो ग्राउंडनट सीड्स या हॉर्स ग्राम यानी कि काला चना, इसको अगर हम डायरेक्टली बायोफ्यूल्स के लिए यूज़ करने लग गए, दिस इज़ अ डायरेक्ट कॉम्पिटिशन टू आवर फूड सिक्योरिटी। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। तो 3 and 4 वी कैन एलिमिनेट, 1, 2, 5 and 6 आर करेक्ट, आंसर इज ए विच इज़ 1, 2, 5, 6। कैसवा और शुगर बीट को क्यों यूज़ कर रहे हैं? दिस इज अगेन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द शुगर केन। शुगर केन और शुगर मिल्स प्रॉब्लम जो हमने पढ़ी थी उसके रिलेशन में ये है। अब इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस एल्गे बेस्ड बायोफ्यूल्स, बट व्हाट आर द लाइकली लिमिटेशंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन प्रमोटिंग दिस इंडस्ट्री? ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एल्गे बेस्ड बायोफ्यूल्स इज पॉसिबल इन सीज ओनली एंड नॉट ऑन कॉन्टिनेंट्स। ये तो कोई बात ही नहीं हुई, आप चाहे कॉन्टिनेंट पे लगा लो 3rd जनरेशन बायोफ्यूल का प्लांट, तो इसमें तो कोई, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। Setting up and engineering algae-based biofuel production requires high level of expertise. This is correct. Economically viable production necessitates the setting up of large-scale facilities which may raise ecological and social concerns. This is also correct. So ये दोनों statements correct हैं. First is wrong, and we can eliminate the first statement and get the answer, which is B. अब ये question है, which of the following organisms are biofertilizers? ठीक है, अगर हमने नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वो वाला पार्ट ढंग से पढ़ा है तो हमें बायोफर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ा होगा कि हमने वहाँ पर सिर्फ नॉस्टॉक के बारे में पढ़ा होता है, एंड दैट इज एग्जैक्टली द आंसर। अगैरिकस क्या होता है? अगैरिकस एक एडिबल फंगस है विच इज ईटन, राइट। एंड स्पायरोगैरा क्या है? स्पायरोगैरा एक फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गे है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं। नॉस्टॉक इज द वन दैट इज यूज्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब विद रेफरेंस टू द यूजफुलनेस ऑफ बाय प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर इंडस्ट्री, क्लास में पढ़ा था कि शुगर मिल्स की प्रॉब्लम है कि FRP देना पड़ता है, एक्सपोर्ट हम कर नहीं सकते क्योंकि WTO की प्रॉब्लम्स हैं, तो हम क्या करते हैं, शुगर इंडस्ट्री को यूज़ करते हैं फिर बायोफ्यूल्स बनाने के लिए। ठीक है, वहीं से एक क्वेश्चन पूछा गया, लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज, which of the following statements are correct? Bagasse can be used as biomass fuel for the generation of energy. This is correct. Molasses can be used as one of the feedstocks for the production of synthetic chemical fertilizers. Molasses are a byproduct of sugarcane. इससे हम डायरेक्टली केमिकल फर्टिलाइजर्स कैसे बना लेंगे? Molasses can be used for production of ethanol. This is correct. Answer is 1 and 3 only. C. Up. With reference to non-conventional energy sources called coal bed methane and shale gas, consider the following statements. ठीक है,
Coal bed methane is pure methane gas extracted from coal seams, while shale gas is a mixture of propane and butane only that can be extracted from fine grained sedimentary rocks. In India, abundant coal bed methane sources exist, but so far no shale gas source has been found. Both these statements are actually incorrect. ठीक है, तो coal bed methane actually is something that we extract from coal seams, right? And shale gas जो होती है, that is a natural gas and hydrocarbon mixture, right? shale gas जो है उसमें the things that we see, उसमें मीथेन भी होता है, इथेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है, ब्यूटेन भी होता है, CO2 भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है. तो प्रोपेन एंड ब्यूटेन ओनली, दिस मेक्स इट इनकरेक्ट. एंड सेकंड स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में काफ़ी सारे एरियाज हैं जहाँ से शेल गैस मिलती है, जैसे कि कृष्णा गोदावरी बेसिन, कैम्बे बेसिन, आसाम में भी है, गोंदवाना बेसिन, राइट? तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. आंसर इज डी, नीदर 1 नॉर 2. अब let's look at the further questions. All right. In India, cluster bean gore is traditionally used as vegetable or animal feed, but recently the cultivation of this has assumed significance. Which one of the following statements is correct in this context? Okay. Oil extracted from these seeds is used in the manufacture of biodegradable plastics. Gum is used in the extraction of shale gas. This is correct. Leaf extract of this plant has properties of antihistamines. This is wrong. हाई क्वालिटी बायोडीजल, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. एक्चुअली इस सीड को हम यूज़ करते हैं ताकि शेल गैस की एक्सट्रैक्शन में, अगेन बहुत ही फैक्चुअल और डिफिकल्ट क्वेश्चन है वैसे, बट उस टाइम के करंट अफेयर्स में था, तो नाउ इवन इफ यू डोंट नो, दैट्स फाइन. सो वी हैव डन 86 क्वेश्चंस. देयर आर अबाउट 50 मोर क्वेश्चंस दैट आर रिमेनिंग. आई एम एक्चुअली स्टॉपिंग दिस वीडियो हियर, एंड कल जो मेरा 12 आवर का लाइव सेशन है उसमें आई विल बी डूइंग द रिमेनिंग क्वेश्चंस. आई एम सॉरी फॉर स्टॉपिंग दिस इन द मिडल. एक्चुअली आई हैव अ लॉट ऑफ हेडेक टुडे. आई वाज सपोज्ड टू अपलोड दिस वीडियो अर्लियर इन द मॉर्निंग, but it's been very difficult for me to record this also. So I'll just stop this here. And there are about 50 questions that are left. About 22 questions are left from the topic of international conventions. And about somewhat about 30 questions, I think 25 questions are left from the topic of pollution. इसमें solid waste management rules, extended producer responsibility, etc. है. Tomorrow when we are doing the 12-hour session for environment, in that session I will cover these questions with you. ठीक है, तो कल इसी के साथ हम इन कल के सेशन में, कल के 12 घंटे के सेशन में हम इनको भी कवर कर लेंगे, राइट? सो आई एम जस्ट स्टॉपिंग दिस हियर, अपलोडिंग दिस राइट नाउ. और कल जो मेरा सेशन है दैट विल स्टार्ट एट 9:30 AM, एंड उसमें विल कवर द रिमेनिंग PYQs. होप आपने यहाँ तक देख लिया होगा. डू कमेंट योर स्कोर कि आपका यहाँ तक कितना स्कोर आया, एंड बाकी के क्वेश्चंस विल सी टुमारो. ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम.